को आमंत्रित करने का, जो कि हमें ओम की महिमा के बारे में बताएंगे। आपका स्वागत है प्रोफेसर। A very good morning to all of you, and many congratulations of the day. Professor Latika Sharma, Alka Didi, Tenzin Didi, Professor Kirandeep, and I can see many of my students here amongst the audience. So I'm very happy and I'm thankful to the department and to Professor Kirandeep and Professor Latika Sharma for giving me this opportunity to interact with you on this special occasion when we are celebrating the 7th International Yoga Day. And also we are going to talk about the importance of Yoga Day, Yoga in our life, and how Yoga is connected to the Pranav Akshar, that is Om. So Om की महिमा, जैसे राधिका जी ने कहा कि ओम की महिमा बहुत ही सुंदर है और उसको समझना, उसको जानना क्यों आवश्यक है, क्योंकि योग की कल्मिनेशन ही ओम पर जाकर होती है। और ओम को सांख्य दर्शन में, जैसे आप लोगों ने, जिनको मैंने पढ़ाया है सांख्य दर्शन, वो जानते हैं कि ओम को ही ईश्वर माना गया है सांख्य दर्शन में। So I'll be starting with my discourse on yoga, and then I'll be moving towards how through yoga we can attain the understanding of Om. ओम क्या है और उसको कैसे समझा जा सकता है योग के द्वारा, उसकी बात करेंगे। तो सांख्य योग, जैसे मैंने आपको कहा, it is one of the 6 orthodox systems of Indian philosophy. And अष्टांग योग जो जिसे हम पढ़ाते हैं सांख्य योग में, वो पतंजलि जी, जो सेज पतंजलि थे, उन्होंने हमें दिया। और जब हम योग की बात करते हैं तो योग कहाँ से आया, योग की जो रूट अगर आप देखेंगे, so it has been derived from the root yuj, and yuj means union. Union of what? It is the union of the finite self, that is Jivatma, and the infinite self, that is Brahma. It is an interface between the human mind and the cosmic mind, a convergence of human consciousness and the cosmic consciousness. So that is yoga. And this is the day on which Adi Yogi had been able to attain this union of human consciousness with the cosmic consciousness. And that is why we celebrate this day. And it has a very great significance, because this is a particular time, a particular day when, you know, the natural forces also help you in moving forward, in progressing towards this process. So in mystic terms, you can say yoga is the merging of the pranavayu. The pranavayu is the vital air which moves upwards, and the apanvayu is the vital air which moves downwards. So it is the, you know, it is where the pranavayu and the apanvayu come in touch with each other. They, you know, mingle with each other. So this is yoga. So yoga is a philosophical, esoteric and scientific pathway to health. If these days when we talk of yoga, we are connecting it with COVID, you know, we say if you want health benefits, yoga is the way. If you want happiness, if you want to come out of depression, yoga is the way. It brings bliss. It harmonizes the body, mind and the soul. Therefore, yoga is very, very important to all of us. And that is why we need to discuss, we need to celebrate, we need to, you know, जिसे कहते हैं योग को अपने जीवन में उतारना। तो हमें अब योग को जीवन में उतारने की आवश्यकता आ गई है, क्योंकि योग के बिना, जैसे कि योग के बिना ना तो शरीर, ना आपकी बुद्धि, ना मन, ना आपकी आत्मा, ये सबको अगर आप हार्मोनाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए योग की आवश्यकता है। आपने अष्टांग योग के बारे में सुना है क्लासेस में, मैंने भी पढ़ाया है, लतिका जी भी पढ़ाती है। तो अष्टांग योग में आपने देखा यम और नियम। यम जो है वो 5 हैं, यम 5 हैं, जिसमें हम बताते हैं अहिंसा के बारे में, जिसे हम नॉन वायलेंस कहते हैं, where you treat people with love, without anger, without hatred. The second is सत्य, सत्य जो आप देख रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं,
और जो आप बिलीव कर रहे हैं वो सब it should be objective truth. That is satya. Then asteya, non-stealing, you should not take away anything which belongs to the other person without the permission of the rightful owner. You should not take that thing away from that person. So that is asteya. And then the next is brahmacharya. Brahmacharya is where we have celibacy. It involves absence of lust and practice of self-control. Then अपरिग्रह means non-greed, जहाँ पे कि हमें किसी की चीज को देखकर इच्छा नहीं होती लेने की. It means absence of tendency and to acquire something which belongs to other. So ये सब चीजें जो हमने कही, अपरिग्रह is something where we do not want to have too many possessions. अपरिग्रह हम उतना ही रखें जितना हमें आवश्यकता है. तो ये 5 हमने बताई हम. और इसी तरह से 5 नियम है. 5 नियम जो है ये पर्सनल डिसिप्लिन हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है शौच, क्लेanलीनेस, संतोष, कंटेंटमेंट, और फिर आता है तप है जिसे हम ऑस्टेरिटी कहते हैं, प्रैक्टिस ऑफ गुड कंडक्ट, स्वाध्याय, reading good literature, reading scriptures, and also introspection. I'm not going into details of these because we have already discussed these in details in classroom. And the last is Ishwar Paridhan. Ishwar Paridhan is surrender to God. Now, why I have discussed these? Because when we are moving on the path of yoga, these are essential. And when we also talk of understanding of Om, these are essential for that too. So Yam and Niyam, these present a complete package of personal, social, and spiritual disciplines which lead to desirable, righteous conduct. So after this, in Patanjali Yoga Sutra, we have Asana. Asana is the bodily postures. Then we have Pranayam. Pranayam where we, Pran ka Ayam, where we control our breath. Then Pratyahar. Pratyahar is where we withdraw our senses from the objects outside. That means all the five sense organs which we have, we are taking those inwards. And then we have Dharana. Dharana is putting your attention to one object, to something, which you have selected to put your ध्यान जिसे कहते हैं, उसमें उसकी तरफ उसको अपने अंदर धारण कर लेना. That is dharana. And then comes dhyan. Dhyan is the right concentration on that object. And then the last is samadhi, where the object and the subject, they disappear. So that is complete absorption. So this is Patanjali's Ashtanga Yoga. Now, there in Patanjali's Ashtanga Yoga, we have योग for bahirang. Bahirang मतलब बाहर के अंगों के लिए योग है, और अंतरंग अंतर के अंगों के लिए भी योग है. तो जो बाहर के अंग के लिए है वो है आपका आसन और आपका प्राणायाम, और जो अंतरंग के लिए है वो है धारणा, ध्यान और समाधि. तो इस तरह से योग जो है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं. अब योग क्या है, योग किस लिए आवश्यक है? क्योंकि योग आपको प्योरीफाई करता है, आपको अंदर से क्लींस करता है, क्लीनिंग करता है, आपको एनर्जाइज करता है, एक शक्ति, एक स्फूर्ति पैदा करता है आपके अंदर. तो इसलिए योग की आवश्यकता है. अब योग कई प्रकार के हैं, जैसे कि आपने देखा कई लोग हठ योग करते हैं जो माइंड को और बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर देता है. फिर कर्म योग की हम बात करते हैं कि कर्म से हम अपने किस तरह से एक्शंस को प्यूरिफाई कर सकते हैं, वो कर्म योग है. या एक्सेलेंस की तरफ अपने कर्मों के द्वारा हम अपने आप को लेकर जा सकते हैं, दैट इज कर्म योग. देन वी हैव राजयोग. राजयोग जो कि माइंड को स्टेबलाइज करता है. माइंड जो कि मंकी की तरह इधर से उधर भागता है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए और कॉन्शियसनेस को एलिवेट करने के लिए राजयोग हम प्रैक्टिस करते हैं. भक्ति योग जहाँ पर हमारी भावनाएं जो हैं, भावनाओं को हम एक सही तरीके से चैनलाइज करना चाहते हैं, वहां पर भक्ति योग आता है. ज्ञान योग जो हमारे विवेक को बढ़ाता है, it empowers us with vivek, the sense of discrimination between what is right and what is wrong. So that is Gyan. But all these forms of yoga, these reduce stress, they bring creativity, they bring joy, they bring blissfulness, and that is why
we should practice योग. दूसरी बात जो है कि योग आपको एनिमल इंस्टिंक्ट से मनुष्यता की तरफ लेकर जाता है. इट मेक्स यू मोर ह्यूमन, और उधर ह्यूमन बीइंग से आपको डिविनिटी की तरफ लेकर जाता है. सो डिवाइन जो कहते हैं कि फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन, ह्यूमन टू डिवाइन. सो इट किंडल्स हायर वैल्यूज इन योर लाइफ, एंड दैट इज व्हाई योग इज इम्पोर्टेंट. Now, when we talk of ध्यान, as I said, जो हमारे अंतरंग के लिए है वो है ध्यान, धारणा और समाधि. अब ध्यान, धारणा और समाधि जो है, इससे हम एक हायर ट्रांसडेंटल लेवल पर जा सकते हैं, और इसे हम कहते हैं लय योग. लय योग मतलब जहाँ पे विलय हो जाते हैं हम विद द क्रिएटर. और जब हम विलय हो जाते हैं तो जो हमारे अंदर एक अनहद नाद है उसको हम सुन पाते हैं, उसके अंदर हम खो जाते हैं, और वो जो अनहद नाद है उस नाद को हम ओम कहते हैं, जिसे हम प्रणव अक्षर भी कहते हैं. That is the primordial sound. That is the sound which is the origin of everything in this world. I have explained in Sankhya to you that how the 5 tanmatras are present in the Panch Mahabhut. अब हम जब देखते हैं कि जब हम पृथ्वी से आकाश की ओर जाते हैं तो आकाश के अंदर केवल एक तन्मात्रा है, और वो तन्मात्रा है शब्द की. वो जो शब्द तन्मात्रा है उस शब्द को ही ब्रह्म माना गया है. वो शब्द क्या है? वो वाइब्रेशंस हैं. वो जो वाइब्रेशंस हैं उन्हीं से ये यूनिवर्स क्रिएट हुआ, और उन्हीं से ये सस्टेन हो रहा है, और उन्हीं वाइब्रेशन से ये समाप्त हो जाएगा. सो ओम इज द क्रिएटर, द सस्टेनर, एंड द will be the destroyer of this universe. So Om is that primordial sound, that sound which is eternal, which is absolute, which is coming from the universe, which is the cosmic sound. जैसे मैंने कहा योग क्या है? इंडिविजुअल सेल्फ, जीवात्मा को कॉस्मिक सेल्फ में के साथ यूनाइट करने का प्रोसेस है. तो उस प्रोसेस में ओम जो है वो हमारे लिए सबसे बड़ा सहायक है, क्योंकि ओम जो है दैट इज शब्द, दैट इज वाइब्रेशन, दैट इज दैट वाइब्रेशन which is the cosmic vibration. And when the humans are able to understand the vibration which is within, हम कहते हैं ना यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तो जो पिंड में है, पिंड में क्या है? वही वाइब्रेशन है जो ब्रह्मांड में है. तो उस वाइब्रेशन को जो पिंड में है उसको ब्रह्मांड के साथ लय कर देना, मिला देना ही योग है. तो ये प्राइमोर्डियल साउंड जिसे हम ओम कह रहे हैं, ये ब्रह्म को रिप्रेजेंट करती है. ये सुप्रीम बीइंग को, जिसे हम ऑल पावरफुल, ऑल प्रिवेडिंग सुप्रीम बीइंग कहते हैं, उसे ये रिप्रेजेंट करती है. ये सगुण निर्गुण ब्रह्म दोनों को ही रिप्रेजेंट करती है. जैसे हम निर्गुण ब्रह्म कहते हैं कि जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई नाम नहीं है, जिसकी कोई फॉर्म नहीं है, तो उस निर्गुण ब्रह्म को, जिसको हिंदुइज्म में, जैनिज्म में, बुद्धिज्म में, सिखिज्म में, जिसे सिखिज्म में हम कहते हैं मूल मंत्र है एक ओंकार सतनाम. तो वो जो ओंकार है, ओंकार क्या है? ओम, जैसे हम कहते हैं चित्रकार. चित्रकार कौन है? जो चित्र को बनाता है. तो ओम को बनाने वाला ओंकार. तो वो ओंकार जो है, ओंकार को बनाने वाला, यहाँ पे जो क्रिएटर है और जो क्रिएशन है वो ओम में ही सम्मिलित है. That's the creator and the creation becomes one in Om. So Om is the origin of everything. Om represents the creator and Om is the creation. कितने जो भी आपके मंत्र हैं, जो वैदिक हाइम्स हैं, उनको जब आप शुरू करते हैं तो उनको आप हमेशा ओम से शुरू करते हैं. देखिए, आप बहुत से मंत्र हैं जिनका जो बिगिनिंग है वो भी ओम से होती है और उनकी एंडिंग भी ओम से ही होती है. जैसे हम स्टार्ट करते हैं किसी मंत्र को तो हम ओम से शुरू करेंगे और उसको एंड भी ओम से करेंगे. इसी प्रकार जब भगवत गीता के अंदर भगवान अपने
स्वरूप के बारे में बता रहे हैं, तो वो अर्जुन से कहते हैं कि वेदों में मैं ओम हूँ, आई एम दैट सीक्रेट सिलेबल ओम। ओम जिसके अंदर सारे सिलेबल्स आ जाते हैं, मैं वो सिंगल सिलेबल ओम हूँ जिसमें सब शब्द आ जाते हैं। शब्द वो शब्दों का सार है, वो संसार का सार है, वो इस पूरे यूनिवर्स की एसेंस है, वो इस पूरी क्रिएशन की एसेंस है, उसे मैं ओम कहता हूँ। अब ये ओम जो है, इसको हम कॉस्मिक वाइब्रेशन के साथ, जो हमारी अपनी वाइब्रेशन है, उसको कॉस्मिक वाइब्रेशन के साथ कैसे मिला सकते हैं। इसके लिए पहले हमें ओम को समझना होगा कि ओम है क्या। ओम जो है, ये इसमें 3 आपको साउंड्स सुनाई देंगे, अ, ओ, म। अब हम कहें कि अगर जब हम ओम बोलते हैं तो हम ओ, म बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे, हम ओम ही बोलेंगे, ओम बोलेंगे। लेकिन जब बोलेंगे तो आप शुरू करते हैं तो आप अपने शरीर में मूलाधार चक्र से शुरू करते हैं। तो मूलाधार चक्र से जब आप शुरू करते हैं तो अ की आवाज आती है, और धीरे धीरे वो अ और ओ मिलकर के अ बन जाता है। तो वो मूलाधार चक्र से चलते हुए आप हृदय पर आते हैं, और हृदय से होते हुए आप अपने जो हाईएस्ट पॉइंट है उस पर जाते हैं। तो जितने चक्र हैं उनको एक्टिवेट करते हुए जब आप ओम बोलते हैं तो ये सारे के सारे चक्र आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। और जब ये सारे सातों के सातों चक्र एक्टिवेट होते हैं, तब जो अनहद मैंने कहा कि वो तब आपको वो अनहद जो है वो सुनाई देता है। अब इसमें मांडुक्य उपनिषद को अगर हम देखें तो मांडुक्य उपनिषद में कहा गया है कि किस तरह से हम इसको जान सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि there are 3 states. One is the waking state, the other is the dream state, and the third is the sleeping state. Waking state जो है वो जैसे मैंने कहा ना, ए यू म एम, ओ म, है ना, ए यू म। तो जो है वो वेकिंग स्टेट है आपकी, और ओ जो है वो आपकी ड्रीम स्टेट है, और म जो है वो स्लीपिंग स्टेट है, जिसे हम कहते हैं डीप स्लीप स्टेट। तो ये जो तीनों स्टेट्स हैं, इसको इन्वेस्टिगेट करना बहुत आवश्यक है। वेदांत में कहा गया है कि जब अगर आप ओम को समझना चाहते हैं, ओम को जानना चाहते हैं, तो आपको इन तीनों स्टेट्स को इन्वेस्टिगेट करना होगा। ये तीनों स्टेट्स हमारी कॉन्शियसनेस की मैनिफेस्टेशंस हैं, और इन तीनों से जो परे है, जो फोर्थ स्टेट है, जिसे हम तुरीय कहते हैं, तुरीय मतलब चतुरीय, चतुरीय मतलब द फोर्थ स्टेट। तो इनसे जो परे है वो भी कॉन्शियसनेस की स्टेट है, दैट इज ऑल्सो मैनिफेस्टेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, एंड दैट इज नोन एज तुरीय। तो ओम जो है, ओम के अंदर आपको वेकिंग स्टेट, जो नीचे का हिस्सा है वो वेकिंग स्टेट है ओम का। ओम अक्षर आपने अगर देखा है तो आई शुड हैव शोन यू द पिक्चर हियर। इन फैक्ट if it is possible, can the organizers display the picture of Om? The lower part of Om, the lower part of Om, जैसे नीचे का जब हम ये हाफ सर्कल एंड हाफ सर्कल, 2 हाफ सर्कल है ना, तो नीचे का जो हाफ सर्कल है दैट इज द वेकिंग स्टेट। जो बीच का पार्ट है दैट इज द ड्रीम स्टेट, दैट इज द सेकंड पार्ट, एंड द थर्ड इज जो ऊपर का पार्ट है दैट इज द स्लीपिंग स्टेट। और जो उसके ऊपर चंद्रमा दिखाई दे रहा है आपको, वो तुरीय है, और जो उसमें बिंदी है उसके ऊपर वो ईश्वर है। तो वेदांत कहता है कि हमें इन तीनों स्टेजेस को समझना होगा, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो इन तीनों स्टेजेस में ड्रिफ्ट करता है। सो वी हैव टू ब्रिंग अवेयरनेस टू ऑल दीज 3 स्टेजेस। अब इन तीनों स्टेजेस में अवेयरनेस को कैसे लेकर आएंगे, कॉन्शियसनेस को कैसे लेकर आएंगे, उसके लिए सबसे पहले हमें, जैसे मैंने आपको कहा, यम नियम, एक अच्छा जीवन बिताना होगा। वी हैव टू यू नो राइट कंडक्ट, राइट बिहेवियर, ये सब करना होगा। फिर हम पे प्रत्याहार, प्राणायाम और प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब पहले तो प्राणायाम सांसों के साथ अपनी जुड़ना होगा,
और फिर धीरे धीरे senses, we have to withdraw all our senses from the external world and take those inwards. तो senses को withdraw करके हमें inwards लेकर जाना होगा। तो ये तरीका है इन्वेस्टिगेट करने का इन तीनों स्टेट्स को, जिसे हम वेकिंग स्टेट, ड्रीम स्टेट और स्लीपिंग स्टेट कह रहे हैं। अब अगर योग के द्वारा, बहुत लोग हैं जिनको योग के द्वारा ये कठिन लगता है, कठिन है ये काम, क्योंकि इतना आसान नहीं है। इसके लिए जैसे मैंने आपको कहा कि आपको ध्यान, धारणा और समाधि, उन जो आपके अंदर अंतर अंग हैं उनके साथ आपको योग की स्थिति में जाना होगा। अब इसे हम कर्म योग के द्वारा भी कर सकते हैं। कर्म योग के द्वारा कैसे कर सकते हैं? जैसे श्री गुरु नानक देव जी ने किया। भगवान गुरु नानक देव जी ने क्या किया? उन्होंने जब वो दे रहे थे तो 13 नंबर पे वो रुक गए। 13 पे क्या कहा उन्होंने? 13 13 13। तो जब हम कोई सेल्फलेस सर्विस करते हैं, व्हेन वी परफॉर्म कर्म योग में, जब हम सेल्फलेस सर्विस करते हैं, वी अलाउ आवर एक्शंस टू बी परफॉर्म्ड विद अवेयरनेस। हम हर एक्शन को अवेयरनेस के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, और इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। देयर आर सो मेनी स्टोरीज इन आवर स्क्रिप्चर्स which tell you that when we perform an action with awareness through Karma Yoga, we can also reach that state of meditation where we become aware of these three stages. These are of awareness of the three stages, which are three states, which are awake state, the sleep state, and the dream state, and the deep sleep state. तो इनको हम अपने कर्म के द्वारा भी इन तक हम पहुंच सकते हैं। ये तीनों स्टेट्स में हम जा सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि जब भगवान गुरु नानक देव जी ने जब 13 13 कहना शुरू किया, तो वो कर्म के द्वारा उस स्टेट में चले गए। मेडिटेशन में जैसे मैंने आपको कहा कि हम प्रत्याहार के द्वारा अपनी सेंसेस को विड्रॉ कर लेते हैं, और फिर माइंड को अपने प्राणायाम से माइंड जो है उसको कंट्रोल कर लेते हैं, उसको बैलेंस कर लेते हैं, और तब फिर हम अपने आप को एक अवेयरनेस के लेवल पे ले आते हैं। और वो अवेयरनेस जो है धीरे धीरे हमें हमारे जो अवेकन स्टेट है, अवेकन स्टेट में भी जो काम हम कर रहे हैं, जितने काम हम कर रहे हैं, whatever tasks we are performing in the awakened state, उनके बारे में भी अवेयरनेस लाती है। We become conscious of every task which we are performing, and we also become conscious of the dream state. आप ड्रीम स्टेट में भी होंगे तब भी वो कॉन्शियसनेस आपकी कायम रहेगी, तो वो कॉन्शियसनेस ड्रीम स्टेट में भी रहेगी। और धीरे धीरे जब आप डीप स्लीप पे चले जाएंगे, जहां पर कि कुछ भी नहीं है, वहां भी वो कॉन्शियसनेस, दैट अवेयरनेस विल रिमेन। बट दिस कम्स विद लॉट ऑफ प्रैक्टिस। यू हैव टू डू एवरी टास्क इन द अवेकन्ड स्टेट विद कंप्लीट अटेंशन, कंप्लीट अवेयरनेस। तो ये अवेयरनेस जैसे जैसे हमारे अंदर बढ़ती जाएगी, और प्रत्याहार जैसे मैंने कहा कि आप सेंसेस को इनवर्ड्स लेते जाएंगे और अवेयरनेस आपकी जो है वो ज्यादा बढ़ती जाएगी, तो आप पाएंगे कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसके बारे में आप कहीं ना कहीं consciously, you're doing every task with consciousness. So this state of consciousness will prevail in all these states, in the wakeful state, in the dream state, and in the deep sleep state. अब ये जैसे जैसे आप इसमें जाएंगे, आप पाएंगे कि आपके अंदर एक साक्षी भाव आ जाएगा। साक्षी भाव का मतलब कि फ्रॉम अ डिस्टेंस यू विल बी सीइंग योरसेल्फ। जब आप अपने आप को एक डिस्टेंस से देखेंगे, जैसे हम अगर एक ट्रैफिक के अंदर है, तो वो ट्रैफिक हमें बहुत इरिटेट कर रहा होता है, बहुत परेशान हो जाते हैं कि इतना ट्रैफिक है, हम इसके अंदर फंस गए हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा ऊपर उठकर देखें, if we rise to a higher level, we are not disturbed by the traffic. And if we go still higher, we might not be disturbed at all by the traffic, because that may look very, there is a harmony in the traffic. We might find a harmony in the traffic, and we may not find any disturbance in it. जैसे आप अगर प्लेन में हैं, एरोप्लेन में हैं, और रात में आप नीचे देखते हैं तो आपको लाइट्स नजर आती है, तो आपको लाइट्स बहुत सुंदर लगती हैं, आपको लाइट्स बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि आपको लगता है कि ये सब जो लाइट्स हैं ये बड़ी एक देयर इज अ
harmony, synchronization in these lights. Whereas when you are in that traffic, you feel there is a chaos in that traffic. तो वो साक्षी भाव कब आएगा? जब आप अपने आप को डिस्टेंस कर लेंगे. When you will go, you will take yourself away from the chaos which is happening within. So उस साक्षी भाव में जब हम आ जाते हैं, वो डीप प्रत्याहार की स्टेट है, जहाँ पे कि सेंसेस बिल्कुल आपके भीतर चली गई हैं, सेंसेस बिल्कुल अंदर आपकी एक एक अवस्था जो है अंदर की, उसको वो सेंसेस महसूस कर पा रही हैं. तो उस समय जो आप ओम जो है, ओम का उच्चारण, जैसे मैंने कहा अ, ओ, म, और फिर ओम के बाद बीच में एक गैप आता है. एक ओम और दूसरे ओम के बीच में जो गैप आता है, उसे हम तुरीय स्टेट कहते हैं. क्योंकि ये जो तीनों स्टेट्स हैं, अवेकन स्टेट, ड्रीम स्टेट एंड डीप स्लीप स्टेट, इन तीनों स्टेट्स के अंदर क्या है कि हमारे तीनों गुण हैं. तीनों गुण हैं, यानी कि अवेकन स्टेट जो है उसमें हम तमस में हैं, जो स्लीप स्टेट है उसमें हम रजस में हैं, और जो ड्रीम स्टेट है उसमें रजस में है, और जो डीप स्लीप स्टेट है उसमें हम सत्व में हैं. और ये तीनों स्टेट्स से जब हम परे चले जाते हैं, वो भी एक कॉन्शियसनेस की ही मैनिफेस्टेशन है, तो उस स्टेट में हम गुणातीत हो जाते हैं. हम इन तीनों गुणों से भी परे चले जाते हैं. सो वी बिकम गुणातीत. तो वो जब हम गुणातीत हो जाते हैं, तो हम पुरुष, जैसे हम सांख्य में पुरुष कहते हैं, प्योर कॉन्शियसनेस कहते हैं, जो कि स्वयं प्रकाशित है, स्वयंभू है, उसमें विलीन होने शुरू हो जाते हैं, जैसे हम कैवल्य, मोक्ष कुछ भी कह सकते हैं. So you can, while you are alive, you can attain that state of kaivalya, you can attain that state of moksha by being, in the state of meditation through Om. पर इसके लिए सबसे जरूरी है कि आपको यम और नियम, जो राइट कंडक्ट है, राइट आपका जो रेगुलेटेड लाइफस्टाइल है, आपकी आसन है, आसन में जब आप अपनी अवेयरनेस, आसन क्या है, मोमेंट टू मोमेंट अवेयरनेस आप लेकर जा रहे हैं टू ईच बॉडी पार्ट. तो वो बाहर के अंगों में अवेयरनेस, आपकी अवेयरनेस आसन में बाहर के अंगों के प्रति है, और जैसे वो प्रत्याहार में आते हैं तो अपने भीतर वो अवेयरनेस लेकर चले जाते हैं. और जैसे जैसे ये आपकी पावर ऑफ अटेंशन, कॉन्सेंट्रेशन, ऑब्जर्वेशन, अवेयरनेस जैसे रेगुलर मेडिटेशन से डेवलप होगी, तो आप पाएंगे कि आप ज्यादा आसान हो जाएगा आपको इन चारों स्टेट्स में रहना. अब मांडुक्य उपनिषद में कैसे बताया इन्होंने इन चारों स्टेट्स को? उन्होंने कहा कि जैसे स्वर्ण है, गोल्ड है, गोल्ड को आप डिफरेंट ऑर्नामेंट्स में ढाल लेते हैं, कड़े बना लिया आपने, उसका आपने गले का हार बना लिया, उसका आपने कानों के इयररिंग्स बना लिए, तो वो सारे, पर अल्टीमेटली क्या है, वो गोल्ड है. तो तुरीय क्या है? वो गोल्ड है, जिसको आपने अवेकन स्टेट में या ड्रीम स्टेट में या डीप स्लीप स्टेट में देखा, लेकिन वो वही, the essence is turiya. Essence is that ultimate, जिसे कहते हैं कि that transcendental state which you attain in turiya, that transcendental state is the essence of all these states which are awakened, dream and deep sleep. And you know why it is important for us? मैं आपको क्यों बता रही हूँ ये सब बातें? क्योंकि as students you have to understand कि जो awakened state है वो conscious है, और जो आपकी dream state है वो subconscious है, और जो आपकी deep sleep state है वो unconscious है. और conscious जो level है उसमें सिर्फ 10% आपकी जो intelligence है. जो unconscious है वहां पर the maximum intelligence lies in subconscious and unconscious state. So if you want creativity, जैसे हम कहते हैं discoveries की, inventions की, लोगों ने बहुत creativity जिनमें हमें नजर आती है, excellent painting somebody has made, sculptures, beautiful sculptures people have made, beautiful composition of music, that all happens in that unconscious state. And to touch that unconscious state of mind, and to be aware in that unconscious state of mind,
you have to take help of Om. तो आप ओम की मदद से उस अनकॉन्शियस जो रिजर्वायर है पोटेंशियल एनर्जी का, उस रिजर्वायर जो एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी का रिजर्वायर है, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं which is lying in the unconscious state through Om, through योग. तो योग जो है वो आपकी मदद करता है ओम के साथ आपको ट्रांसेंड करने पर, where you can transcend to higher levels of awareness and you can attain, you know, that perception of eternal reality, which will help you in harnessing your true potential, which will help you in reaching that divine potential. As Swami Vivekananda said, we all have the divine potential. He said we are all potentially divine, and education is the manifestation of that divinity within you. What is that education? That education of knowing, becoming aware of your three states and transcending to the state of Turiya. That is what it is. तो ये मुझे लगता है मैंने बहुत ही साधारण शब्दों में आपको जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं के बारे में बताया, और ये बताया कि किस तरह से आप अपने आप को जो मैटर, माइंड और कॉन्शियसनेस, इनको किस तरह से यूनाइट कर सकते हैं. So how can you, as a seeker, you know, you can become closer to your mind and your consciousness and your super consciousness. और जो योगी है वो मुमुक्षु है. मुमुक्षु मतलब वो हमेशा जानना चाहता है, सीखना चाहता है, वो योगिक डिसिप्लिन को सीखना चाहता है. और जब वो योग युक्त मतलब आज जैसे हमने थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स योग के बारे में बात किए हैं, तो आज हम योग युक्त यानी कि योग को जान पाए हैं, समझ पाए हैं. लेकिन योग अनुभव का वो है, it's a matter of experience. So if you want that bliss, so you have to go through those experiences, you have to go through that journey, you have to travel on that path. Only then you will be able to attain that state of Turiya. So it is very important that it is not only to gather knowledge about it, but to walk on that path. Walk the talk, जिसे कहते हैं. You have to walk on it, you know, to attain that state of awareness, state of consciousness. ओम जो है, जैसे मैंने कहा कि प्रणव अक्षर है, वो तीनों वर्ड्स, तीनों ये पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लेन करता है, अर्थ, एटमॉस्फेयर और हेवन को. वो तीनों को बताता है क्रिएटर ब्रह्म को, सस्टेनर विष्णु को, और जो इन्हें एनिहिलेटर है उसे शिव को, जो सबको समाप्त करने वाला है. ये तीनों वेदों को बताता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, तीनों वेदों को बताता है. यानी कि ओम जो है, इट्स अ mystical sound. It contains the whole universe within it. These are, Om is the vibration. आप अगर scientifically बात करें तो NASA has found that there are vibrations which can be heard. There's a sound, there's a humming sound which the planets give, and this humming sound they have found which comes out from the sun is very similar to what is Om. अब ये ओम को जानना, ओम को एक्सपीरियंस करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि एक तो वो सत्व गुण को बढ़ाता है, आपको तमस से, जैसे मैंने कहा, अस्तो मां सदगमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया, मृत्यु मां अमृतगमया. तो अगर आप तमस से सत्व की तरफ जाना चाहते हैं, असत से सत्य की ओर जाना चाहते हैं, मृत्यु से अमृतत्व की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपको ओम का सहारा लेना होगा. और ओम जो है वो आपको एक ऐसी हाइटेंड स्टेट पर ले जाता है जहां पर कि आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड कर जाती है. यानी कि जैसे मैंने कहा कि पूरे यूनिवर्स में प्रिवेड कर रहा है ओम, इसी तरह से आपकी कॉन्शियसनेस भी उसमें उसी तरह से एक्सपैंड कर जाती है, उसी में समाहित हो जाती है. It goes beyond space and time. It goes beyond the three gunas. और इसको हम अगर समराइज करें तो हम कहेंगे अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम. चर अचर जितना भी जगत है, इस सारे जगत के अंदर
अखंड मंडलाकार, पूरे जगत में सर्वव्यापी हो गई है। कॉन्शियसनेस पूरे जगत में, it's pervading the whole universe. And when it happens, when your consciousness expands, then you see divinity in all human beings. तब हम कहते हैं ओम नमो नमः, I see divinity in every one of you. And that is the time when you become compassionate. करुणा निधान, भगवान को हम क्या कहते हैं? करुणा निधान. You become compassionate, you become one with, you are compassionate. मतलब जिसे कहते हैं करुणा निधान, करुणा का निधान जिसमें, तो जिसमें compassion ही compassion है, जिसमें there is only love. So you become love. You what you embody, you just manifest love. You become that, and you become divine. And that is the whole purpose of this life. The whole purpose of this life is to become one with the existence, to harmonize yourself with the existence. और फिर हमारे जो decisions होंगे, those would be for the good of all. वो समष्टि के लिए होंगे, अपने लिए नहीं होंगे, individualistic नहीं होंगे. Those will be, our goals will be for the good of the whole of humanity. And then sustainable development will happen, equity will happen, everything we have been talking about, all these constitutional values which we talk of, brotherhood, fraternity, everything will happen once